ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے ہماری تقریبات اور خاص طور پہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں وہ دوبارہ سے آن ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح رونقیں بحال رکھے. کئی لوگوں نے بڑا انتظار کیا جی, ان کا یہ بڑا یادگار دن ہوتا ہے اور وہ فیل کر رہے تھے کہ سب کچھ کووڈ نے تہس نہس کر دیا. لیکن خاص طور پہ 2021 کی ونٹر ویڈنگز اور ونٹر کی جتنی بھی تقریبات ہیں اس میں آپ کی لکس کیا ہونی چاہیے, اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آج کا سیگمنٹ کریں واٹ آر دا کلرز, واٹ اسٹائلز آر ان. تو ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مائی ویری ڈیئر فرینڈز اینڈ somebody both of them are mashallah doing such amazing work, اور خاص طور پہ ان کی جو لکس ہوتی ہیں وہ ٹرینڈ سیٹرز بن جاتی. تو ان سے پوچھیں گے کہ واٹس ان اینڈ واٹس ناٹ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سارا اینڈ ثنا فرام دا ثنا سارا سیلون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ آئی سی کہ بلیک ول آلویز بی ان فیشن. آپ دونوں نے یو چوز ٹو ویئر بلیک. Yes, it looks formal, I believe. I can understand that absolutely. اچھا جی, سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ونٹر لکس ایک بڑے یونیک انداز میں آپ کو پریزنٹ کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ برائڈ کے جو گھر والے ہیں, ان کی فرینڈز ہیں, انہوں نے لکس کو اکٹھا کیا ہوتا ہے, پنٹرسٹ سے لیا ہوا ہوتا ہے, بٹ دے ہیو فارملی لانچ دیئر اون لک بک آف دا ثنا سارا سیلون ود اینڈ دا فیس آف دس کیمپین از ایمن خان. ہمارے ساتھ ان کی فوٹوگرافس موجود ہیں, ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایمن کا فوٹو شوٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ تمام برائڈز جو اس سیزن میں الحمدللہ ان کی شادی ہے تو ان کے لیے بڑی ہی ہیلپ فل ہے. سو وی آر سیئنگ اٹ آن اسکرین رائٹ ناؤ. آئی سی دا ریڈز کم ان. اس پہ چلے گفتگو ساتھ ہی شروع کرتے ہیں. کیا کہتی ہیں ثنا, وائی واز دس پرٹیکولر لک چوزن؟ ایک میں بڑا سافٹ لک دیکھ رہی ہوں ود دا گریز اینڈ دا ویری ڈیوی لک, اور دوسرا جو ہمارے یہاں ٹریڈیشنل برائڈ کا ریڈ ویئر ہے اینڈ ود دا ریڈ پاؤٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو دیٹ ول آلویز بی ان فیشن. I suppose yes. The reason is because obviously شادی generally ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, تو اس میں لڑکیوں کے پاس for their first day they really want to look something very traditional جو کہ 10 سال بعد بھی وہ دیکھیں تو they should look like a bride. And even we suggest کہ yes, بارات پہ we should go something کہ red pout اور اس کے ساتھ eyes کو little bit enhance کیا جائے, not very much کہ بہت dramatic eyes نہ ہو, مطلب نیچرل رہتے ہیں. صرف آئی کی شیپ انہینس ہو, اس کے ساتھ ریڈ آپ کے لپس کر لیں اینڈ گلوئی ڈیوی اسکن ہو, جو کہ آج کل واقعی بہت ٹرینڈی ہے. یہ جو گلوئی اسکن ہے اس کے بارے میں ہمیشہ پوچھنا چاہتی ہوں ثنا کہ اٹ آلموسٹ لکس لائک یو ہیو دس ڈیوی ویل موئسچرائز اسکن, لیکن جو ہمارے یہاں کی شادی کی روٹین ہوتی ہے کہ دلہن بیچاری اپنی بارات سے ایٹ لیسٹ 6-7 گھنٹے پہلے ریڈی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ پورا فنکشن, اس کی رخصتی بائی دا ٹائم ہوتی ہے وہ رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس وقت تک لاسٹ کرتا ہے یہ ڈیوی لک؟ ہاں, تو اس کے پیچھے بہت سیکریٹ ہے. اگر آپ کسی اچھے پروفیشنل بیوٹیشین کے پاس جا رہے ہیں, ایک اچھے برانڈ نیم کے پاس جا رہے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لک کریٹ کیسے کرنی ہے, اس کو سسٹین اینڈ تک کیسے کروانا ہے. سو obviously یہ کوئی میریکل نہیں ہے, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ بہت کام ہو رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اسکن پریپ ہوتی ہے. اسکن کی پریپریشن اسکن کے حساب سے, اگر کوئی آئلی اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہے, تو اس کے حساب سے ہم اسکن پریپ کرتے ہیں. اسکن کو سیٹل ہونے کے چھوڑتے ہیں لائک فار ہاف این آور اور 15 منٹس, ڈیپینڈ کرتے ہیں اسکن ٹائپ پہ. پھر جب اسکن سیٹل ہو جاتی ہے اس کے بعد وی اسٹارٹ اپلائنگ پروڈکٹس, اور پروڈکٹس میں بھی ناٹ جسٹ فاؤنڈیشن وچ وی اپلائی, اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارے پاس ایلیمینیٹرز ہوتے ہیں اینڈ دین بہت سارے کمبینیشن آف سو مینی پروڈکٹس وچ وی اپلائی اور ڈیپینڈنگ اپون دا اسکن. اور اس کے بعد جب سارا میک اپ ہو جاتا ہے دین وی میک شیور کہ ایٹ لیسٹ ہر پروسیجر کے 5 منٹس کے گیپس کے بعد ہم ایک اچھے برانڈ کا فکسنگ اسپرے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل فکسنگ اسپرے بھی ڈیو آ گئے. سو جب پورا اینڈ لائک ان ٹوٹل آفٹر این آور جب ساری چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں, پروسیجرل ہوتی ہیں, تو جیسے کہ obviously اگر پروسیجرل ہوتی ہے تو اس کی لاسٹنگ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. جیسے آپ ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ کئی دفعہ میک اپ دیکھے, وہ کہتے ہیں ٹرسٹ دا پروسیس. آپ کو بیچ میں بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں کوئی عجیب سے میں نے 2-3 مارکس لگا لیے ہیں, ول دس ورک, ول دس ناٹ ورک, بٹ ایونچولی اٹ کمز ٹوگیدر. سارا کچھ کوشچنس بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے, سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ آن دیٹ. کسی نے کہا ہے کہ جی میں بہت پٹیٹ ہوں, آئی ہیو ویری لٹل وزن بہت کم ہے, لیکن میرا کمپلیکشن ڈسکی ہے. شی لوز ہر اسکن, لیکن پوچھنا یہ ہے کہ ڈسکی اسکن کے اوپر کیا ٹرینڈز آج کل چل رہے ہیں؟ ڈسکی, اف یو آسک می سدرا, ڈسکی پہ اتنا اچھا میک اپ جاتا ہے بیکاز ہم فیئر کمپلیکشن پہ بہت بانڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کانٹور پہ بھی تھوڑا سا ہم سافٹ رکھتے ہیں. ڈسکی پہ ہم فیچرس کو بہت اچھی طرح سے انہانس کر سکتے ہیں. جو ہماری ایشین اسکن ٹون ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا ہیوی میک اپ پہ بھی جا سکتے ہیں, جب سے کمپیریٹیولی اگر ہم فیئر کمپلیکشن میں جائیں تو ہمارے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے فیئر کمپلیکشن پہ آپ بہت سافٹ لک پہ جائیں تو زیادہ, جس طرح سے ایمن کا ہم نے شوٹ کیا ہے, تو ایمن اور منال کے دونوں کے بہت پریٹی فیئر کمپلیکشن پہ ہم بہت سافٹ لک رکھیے. کمپیریٹیولی ڈسکی پہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا فیچرز کو انہانس کر سکتے ہیں, آئیز کو تھوڑا سا ڈرامیٹک کر سکتے ہیں, اور ایک اچھی لک آ سکتی ہے ڈسکی کمپلیکشن. مجھے بتائیں کہ از اٹ ٹرکی کہ جب آپ کے ڈسکی کمپلیکشن ہو یا ویٹش کمپلیکشن ہو اس پہ کانٹورنگ مشکل ہوتی ہے؟
नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, पैची बन जाती है. मैं देखती हूँ कई दफा अगर अच्छी तरह ब्लेंड ना हो तो वो बड़े पैचेस लग रहे होते हैं. अगेन सिद्रा, प्रोफेशनल मेकअप, यस, प्रोफेशनल मेकअप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम होम बेस्ड मेकअप. और प्रोफेशनल मेकअप में टेक्निक्स, टूल्स एंड द प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो प्रोसीजर, अगेन जैसे सना ने कहा, और हमें सही टेक्निक्स पता होती हैं किसके ऊपर क्या जाएगा. तो हम पहले जब भी हमारे पास कोई भी ब्राइड आके बैठती है तो हम प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं कि किसको क्या चीज चाहिए, किस तरह से चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, थोड़ा सा ड्रामेटिक चाहिए, कॉन्टोर में भी सॉफ्ट कॉन्टोर चाहिए, थोड़ा हेवी कॉन्टोर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द फेस एंड डिपेंडिंग ऑन द चॉइस. तो आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रिकी, इट्स वेरी इजी फॉर अस, आई बिलीव. बिल्कुल सही है. अच्छा, 2-3 और क्वेश्चंस आ रहे हैं. मुझे ये बताइए सना के व्हेन यू लुक एट एनी ब्राइड तो उनकी फैमिलीज का, और अक्सर जब वो तैयार होकर आती है तो इन ऑ होते हैं ना, कितनी खूबसूरत लग रही है, प्रॉपरली डन अप एंड ऑल. लेकिन एक जो कॉमन हम बात सुनते हैं कि अपनी उम्र से बड़ी लग रही है. सो व्हाट कैन ब्राइड्स डू ताकि उनका प्रॉपर मेकअप भी हो, दे लुक ब्यूटीफुल बट दे डोंट लुक ओल्डर देन देयर एज. कॉमन मिस्टेक्स क्या करती हैं जिसकी वजह से उम्र बड़ी लगती है? नहीं, मेरे ख्याल से वो बेचारियां नहीं कर रही होती है, वो तो ब्यूटिशियन गलत कर दे तो ओवर एज लग सकती है. हाँ. और उसका रीजन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि मेकअप इज कंसिडर्ड एज कलर एप्लीकेशन. वाइल जनरली अगर आप, हम जैसे मेरे साथ की ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग, जैसे हम पेरिस गए थे, अमेरिका गए, वहां पे सारी प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो लुक नहीं आ रहा था. मिनिमम हर चीज लगा के भी लगता नहीं है कि मेकअप की दुकान है. हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड था, लेकिन अब आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी बेटर कि आप वो मैचिंग के शेड्स जैसे ड्रेस है वैसे आइज पे लगाते हैं. तो अगर आप मैचिंग कर रहे हैं ना, शेड्स कलर्स लगा रहे हैं, तो दैट्स नॉट मेकअप. मेकअप इज बेसिकली फीचर करेक्शन, फीचर रेक्टिफिकेशन, जो भी इश्यूज हैं. सो व्हाट मी एंड सारा डू, वी मेक श्योर कि हर आइज आपकी या लोज या लिप्स या जो व्हाटएवर फीचर्स वी आर डीलिंग विद, हम सिर्फ फीचर एनहांस करें. तो जब आप फीचर एनहांस करें तो इट हैज टू बी ब्लेंडेड. इट शुड नॉट बी के लाइनर अगर है तो बहुत विजिबल, जहां तक खत्म हो रहा है पता चल रहा हो कहां से शुरू होकर कहां तक हो. तो जब आप बहुत ब्लेंडेड करते हैं, उसको नेचुरल वे में रखते हैं, कोई शार्प चीजें नहीं करते, तो आई डोंट थिंक कि वो ओवर एज लगती हैं. और प्लस ये कि ब्राइड के हिसाब से अगर किसी के फीचर शार्प हैं तो हम उसको शार्प मेकअप या डार्क लिप्स नहीं देते. हम सजेस्ट करते हैं कि सॉफ्टर लिप्स पे भी सॉफ्टर जाओ. जिसके इनोसेंट फीचर्स है उनको हम डार्क भी कर सकते हैं. तो ये मतलब इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस एंड ऑब्वियसली लगती वो बड़ी है जो गलत चॉइस ऑफ सिलेक्शन. अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो हमारे यहाँ कुछ खास वर्ड्स यूज होने लगे हैं सना, कि हम बात करते हैं कि जी निकाह लुक, फिर उसके बाद आ जाती है मंगनी लुक. यानी ये क्या इसका मतलब? मेकअप को हम कहते हैं कि जी मंगनी या मायूं वाला लुक देना है जिसपे बिल्कुल बस एक वॉश्ड आउट हल्का सा पिंकी लुक हो. इनका क्या मतलब क्या होता है? यस, हमारे पास सेवरल कैटेगरीज होती हैं. अगेन सबसे पहले तो वही कैटेगरी वाइज होता है. जैसे मेहंदी मेकअप है, इट हैज टू बी लाइक बहुत, हम लिड को बहुत सॉफ्ट रखते हैं, गोल्ड्स में लगते हैं, और लैशेज अगर चाहिए होती हैं तो हम लगाते हैं. अगर वो होती है लैशेज पे भी हम फोकस नहीं करते. लिप्स पे भी हम थोड़ा सा न्यूड और पीची जो कोरल टोन्स होते हैं वो रखते हैं. देन वी हैव निकाह कैटेगरी, निकाह एंड एंगेजमेंट. उसमें भी होता है थोड़ी सॉफ्ट लुक होती है कंपैरेटिवली टू अ वलीमा एंड अ बारात लुक. जब बारात लुक की बात करते हैं तो उसमें अगेन कंसीडर टू बी अ रेड पाउट और थोड़ा ड्रामेटिक आईज हो, थोड़ा गोल्ड लिड के साथ हो. वलीमा लुक पे थोड़ी हैवी आईज, स्मोकी आईज जनरली लोग जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनकी डिमांड होती है, विद सॉफ्टर लिप्स. तो देयर आर कैटेगरीज, उसी हिसाब से फिर. अच्छा, हेयर डूज के बारे में बताइए. ये सदफ का सवाल है आपके लिए कि मुझे ये बताएं कि आमतौर पे आजकल एक्सटेंशंस को लगा के साइड ब्रेडिंग भी बहुत की जा रही है. इज दैट रिकमेंडेड? और उनका सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद जब मेरी रुखसती हो जाए तो मैं उसको अकेले निकालूं कैसे, तब क्या करूं मैं? ओके, इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि अगर इफ वी फील लाइक कि किसी के बाल लाइट है या वो खुद इटसेल्फ, क्योंकि आजकल हेयर डूज पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने लगे हैं बहुत सारी लड़कियां. अगर अच्छे बने तो आई डोंट माइंड. अगर हेयर डू अच्छा बना हुआ, प्रॉपर मेकअप नेचुरल हो तो इट गोज विद इट. तो अगर उसमें ये होता है कि एक एक्सटेंशन नीडेड है तो वी सजेस्ट द ब्राइड बट अप टू हर. अगर वो इफ शी फील लाइक कि हाँ मुझे चाहिए तो देन वी अप्लाई ऑन एक्सटेंशन ऑन हर. और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, यस इट्स डिफिकल्ट कि वो निकालना. तो उसमें होता है कि हमारे जो हेयर एक्सपर्ट्स हैं, जो हेयर डू कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं. मीनवाइल जब वो कर रहे होते हैं कि एक्सटेंशन आपको कंडीशनर लगा के 15 मिनट्स लेफ्ट करना है और उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉम उंगलियों से करना है. तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमारे जो हेयर एक्सपर्ट्स हैं, हमने उनको गाइड किया, वो उनको बता रहे होते. तो देन इट्स वेरी इजी. वली में पहन के कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त. अच्छा, एक और चीज जो आमतौर पर लड़कियां करती हैं कि दे हैव दिस लुक इन माइंड सारा, कि वो लेंसेज लगाएंगी और बड़ी बड़ी आईलैश एक्सटेंशंस लगाएंगी, और इस पे मैंने डिजास्टर्स होते हुए देखे हैं. यानी समटाइम्स द ग्लू इज नॉट वर्किंग, जो आईलैश वाली ग्लू है उससे उनको इरिटेशन होती है. लेंस अगर पहली दफा लगाए तो इरिटेशन होती है. आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी ब्राइड्स को? विद माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हम लोग यही कहते हैं कि ब्राइड ऑलरेडी बहुत प्यारी लग रही होती है, और उसका जो इवेंट होता है, स्पेशली द बारात इवेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काफी लास्ट करता है. उसका ड्यूरेशन होता है थोड़ा लंबा होता है. तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि इट इज योर इवेंट, यू हैव टू एंजॉय योर इवेंट रादर देन जस्ट एक
कॉन्टेक्ट्स की वजह से आप समझे कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको रिमूव कर दें और आप अपना जो है वो इजीली कैरी करें अपने लैशेस को, क्योंकि आईज बहुत वाटरी हो जाती हैं जब आप कॉन्टेक्ट्स वेयर करते हैं. और इवन जब हम आई मेकअप कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही होती हैं आई मेकअप, तो वो बस ब्रश स्ट्रोक एक लगता है और उनकी आईज जो है वो टीयरी होना शुरू हो जाती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कैरी द मेकअप. तो हम अगेन गाइड करते हैं कि लैशेस लगा के भी आपने जैसे अपना ड्रेस आप हैवी कैरी करते हो, यू हैव टू कैरी योर लैशेस लाइक दिस. आपने बहुत क्लोजली टाइट नहीं करना अपनी आईज को ताकि आईज टीयर ना हो. कॉन्टेक्ट्स कोशिश करें कि अगर आपके आई साइड के पार कॉन्टेक्ट्स नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट्स रिमूव कर दें, आप ऐसे ही इतने अच्छे लगेंगे. तो मेरे हम लोग की सजेशन ये होती है जनरली होते हैं जो ब्राइड्स पहले यूज करती रहती हैं वो बहुत यूज टू होती है, वो बड़ी इजीली कैरी करती है. जिनको फर्स्ट टाइम शौक होता है कि सबसे प्यारा लगना, सब कुछ आज ही करना है, तो उनके साथ बड़े इश्यूज हो जाते हैं, तो उनकी बड़ी काउंसलिंग करते हैं. मैं और सारा तो मेरे से बहुत ब्राइड्स हमारी दुश्मन भी बन गई होगी क्योंकि हम उनकी उतरवा रीजन बिंग कि वो जब तक जा रही होंगी उनका मेकअप 10 आवर टचअप के बाद इवेंचुअली मेकअप खराब हो जाता है. सो वी मेक देम रियलाइज कि भाई अभी उतार दो, इससे बेहतर है कि 6 बजे तक तुम खुद भी रोती रहो और हम भी 10 दफा रीडू करें. लेकिन जो नॉर्मली कैरी कर रहे होते हैं वो बड़ी इजीली भी कैरी कर लेती है. अच्छा, मुझे बताया, मुझे एक बड़ा क्यूट ट्रेंड लगा कि लोगों ने मेहंदी पे अपने लहंगे के नीचे ट्रेनर्स पहन लिया ना ब्राइड ने कि भाई मैंने अपना दिन एंजॉय करना है, बट दैट्स अ क्वर्की थिंग टू डू. फुटवेयर के बारे में कोई गाइड नहीं करता. मेकअप तो बता लेते हैं, आपके कपड़े भी हो जाते हैं, अब लहंगे में आपने हील भी पहननी है, लेकिन इतने घंटे जब अपने आप को कैरी करना है, अगर मैं आप लोगों से इस बात पे एडवाइस लूं कि व्हाट काइंड ऑफ शूज डू यू रेकमेंड कि ब्राइड्स को पहनने चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आजकल ब्लॉक हील्स बहुत अच्छी आ रही हैं. तो वो ब्लॉक हील्स जो होती हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं आपके रादर देन पेंसिल हील्स. तो हम लोग ब्राइड्स की काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि जब आती हैं हमारे पास बुकिंग के लिए, तो हम ये कहते हैं कि इवेंचुअली इट्स योर इवेंट, यू हैव टू एंजॉय योर इवेंट रादर देन टेकिंग प्रेशर. एंड वो क्योंकि फोटो सेशंस भी हो रहे होते हैं, वो सुबह से सैलून भी आई हुई होती हैं, तो वो बहुत टायर्ड हो जाती हैं. तो ब्लॉक हील्स अगर उनकी हाइट का इशू है, बिकॉज जनरली हर एक की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है. मैंने खुद अपनी शादी पे फ्लैट पहने थे, सना ने अपनी शादी में मैंने हर कलर की हर इवेंट के लिए अलग अलग हील्स ली हुई थी, लेकिन जब मैं सलोन से निकल रही होती थी सोच रही नहीं मुझे बीइंग कंफर्टेबल भी मैं उसी गाड़ी बैठती शूज चेंज कर लेती थी. एंड थ्रू आउट वेडिंग मैंने अपनी सबसे कंफर्टेबल चप्पल पहनी थी, बिकॉज फॉर मी लाइक हालांकि मैंने अपनी मेहंदी भी एंजॉय की थी, मैंने डांस किया था, मैंने शादी वलीमा, बिकॉज मुझे लगता था मुझे एंजॉय करना है और मुझे किसी को दिखाना नहीं है. आई वॉज कंफर्टेबल विद दोज लाइक प्लेन सिंपल मेरी जो थे स्लीपर्स थे, मैं उसमें लिटरली बिकॉज किसी ने देखना तो था नहीं. आपने कहा इट इज योर डे और यही इनकी एडवाइस होती है. आई लव द सिग्नेचर ब्राइड्स दैट सना एंड सारा सैलून डज. इनके दो outlets and they have 2 salons, one's in Gulistan Johar and the other's in DHA, so do check them out. And one is upcoming. There is another one coming up as well. और आप इनसे बकायदा I think all brides, एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का मेकअप आर्टिस्ट चुने, लुक आपके जहन में हो, लेकिन डू गो फॉर अ कंसल्टेशन. एक आखिरी सवाल आ गया है सारा, मैं तुमसे पूछ लेती हूँ. ये मुझे बताएं, मेहंदी में भी बड़े डिजाइन चल रहे होते हैं, तो एक अपकमिंग ब्राइड है माहिर, उन्होंने पूछा मुझे बताएं मेमनी, सुडानी, अरबी, आजकल कौन सी फैशन में कौन सी मेहंदी लगवाई जाए? डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन. हमें तो रेफरेंस पिक्चर्स आ रही होती हैं, तो वो जो रेफरेंस पिक्चर है, अमलगमेशन आजकल ज्यादा चल रही है. और फुल लेंथ पे ज्यादा दोबारा से आ गई जो थोड़ा सा इंडियन स्टाइल है. तो वो थोड़ा ट्रेंडिंग है. अच्छा, ये मेहंदी आर्ट अभी भी चल रहा है जिसके अंदर वो थोड़ी स्केचिंग भी करते हैं, दूल्हा दुल्हन की शक्ल बना देते हैं, नाम लिख रहे हैं उसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन. इट लुक्स क्यूट, सो दैट्स आल्सो इन ट्रेंड. तो देखिए जी, आपको 2021 की जितनी अपकमिंग ब्राइड्स हैं उनके लिए जबरदस्त आज एडवाइस एंड टिप्स थी. फॉर मोर कंसल्टेशंस प्लीज रीच आउट टू योर मेकअप आर्टिस्ट ताकि उस दिन आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ना हो. हैव अ रिलैक्स्ड फन डे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत शुक्रिया सना एंड सारा फॉर बीइंग हियर विद अस. दे हैव मोर सरप्राइजेस कमिंग अप फॉर यू, तो वो हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे. लेकिन एमन की लुक्स जो स्पेशल विंटर ब्राइड की लुक्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं. उसमें से जो पसंद आए, इंस्पायर्ड हो, कंसल्टिंग के लिए अप्लाई करें, फिर उसके बाद यू कैन गो फॉर इट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.